السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج الحمدللہ ہم سورہ مریم کا آخری رکوع شروع کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 83 تا 95 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا تجزیہ ارشاد فرمایا تھا، اور جو شیطانی جماعتیں ہیں، جھوٹی جماعتیں ہیں، کافر، مشرک اور منافق، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلا ایک جو لفظ ارشاد فرمایا، دو جگہ پر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا جو مفہوم تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی اللہ رب العزت کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، نظریات رکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے معبودان باطلہ کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بچت ہو جائے گی، یہ ان کی باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ تو ان کا مال و اولاد کام آئے گا، ظاہری اسباب کام آئیں گے، اور ظاہری شان و شوکت کام آئے گی۔ دنیا میں جو پریشر گروپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مافیاز کی شکل میں، وہ انسانیت پہ مختلف طریقوں سے پریشر ڈالتے رہتے ہیں، پھر ظالمانہ سسٹم قائم کرتے ہیں، پھر اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں بڑی طاقتوں کے لیے۔ تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج دنیا میں ہمارا بڑی طاقتوں سے رابطہ ہے، تعلق ہے، اور وہ ہمیں مشکلات سے بچا لیتی ہیں، یقیناً ظاہری طور پر ان کو بچا بھی لیتی ہیں، لیکن ان کا جب یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنی سرکشی ہے کرنی ہے کر لو، جتنا کفر، شرک، نفاق پیدا کر کے اللہ رب العزت کی سچی جماعت کا مقابلہ کرنا ہے کر لو، انسانیت پر مظالم ڈھانے ہیں ڈالو، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا ضرور آنا ہے، دنیا میں آئے گا، اگر دنیا میں بچ گئے تو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی مال و اسباب، ظاہری اسباب، اولاد، اور اسی طرح آپ نے دنیا میں جو نام نہاد جماعتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب وہاں ڈھیر ہو جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کے جو معبودان باطل ہیں ان کو بھی پیش کریں گے، اور وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے، ہر چیز ان کے مخالف ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 83 میں آج ارشاد فرما دیا، الم تر
अन्ना अरसलना अश्शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। आप मुआशरे के अंदर ये देखिए कि जितनी शैतानी जमातें हैं, इनके पीछे है कौन? इनके पीछे शैतान है, शैतानी ताकतें हैं, वो इनको वरगलाती हैं, वो इनको उछालती हैं, उबारती हैं, वो इनके माइंडसेट परवान चढ़ाती हैं। क्या? कुफर वाले, शिरक वाले और निफाक वाले, तकब्बुर वाले, सरकशी वाले, अल्लाह की सच्ची जमातों की मुखालफत वाले, वो नज़रियात इनके परवान चढ़ते हैं, इनमें डाउट पैदा करते हैं, शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ला ताजल अलैहिम, आप इन पे जल्दी ना कीजिए, इनका आप तज्ज़िया कीजिए। ज़ाहिर है जब किसी सोसाइटी में ये मौका मिलेगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची जमातों के मुकाबले में आकर अपना किरदार अदा करेंगे तो फिर ही तज्ज़िया होगा ना। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, हमें कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह इनको मौका देते हैं और हमें भी मौका देते हैं कि हम गौर व फिक्र करें, हम भी उनके बारे में प्लानिंग कर सकें, आने वाले दौर का जायज़ा ले सकें कि आज के मारूज़ी हालात क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ला ताजल अलैहिम, आप इन पे जल्दी ना कीजिए, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी भाग डीली रखते हैं और फिर इनके ज़िंदगी के दिनों को गिनते हैं। नउद्दु लहुम अद्दा, गिनती करते रहते हैं कि ये कब वो वक़्त आएगा जब इनको सज़ाएँ मिलेंगी, दुनिया में भी सज़ाएँ मिलेंगी, आखिरत में भी मिलेंगी। और फिर क्या होगा? यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, ये फिर अल्लाह ने कंपैरिजन के तौर पे इरशाद फरमा दिया कि उस दिन हम मुत्तक़ीन को जमा करेंगे, अल्लाह की सच्ची जमातें अल्लाह की तरफ आएंगे और अल्लाह के ये क्या होंगे? मेहमान बन के आएंगे। सच्ची जमात जिन्होंने दुनिया में जद्दोजहद की, सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुज़रे, ये अल्लाह के मेहमान होंगे अल्लाह के पास। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और ये जो मुजरिमीन हैं, हिज़्बुश्शयातीन हैं, इनको जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। जिस तरह एक जानवरों का रेवड़ हो, उनको प्यास लगी हो, भूख लगी हो, वो तेज़ी से चलते हैं अपने खाने पीने की तरफ, पानी की तरफ, और इसी तरह उनका जो बंदोबस्त किया जाता है उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। इसी तरह ये जहन्नम की तरफ भागते हुए जाएंगे। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा, ये सुन लें, कोई किसी किस्म की सिफारिश का वहाँ मालिक नहीं होगा, इख्तियार नहीं होगा, किसी को शफाअत का, सिफारिश का इख्तियार नहीं होगा। हाँ, जिसको अल्लाह ताला वादा है जिसका कि वो सिफारिश कर सकते हैं, जैसे अम्बिया हैं, मलाइका हैं, और इसी तरह जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है कि ये लोग सिफारिश कर सकते हैं, वो सालिहीन हैं, दर्जा बदर्जा सिफारिश करेंगे। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिफारिश की इजाज़त मिलेगी और आप भी सिफारिश करेंगे। लेकिन ये जो दुनिया के अंदर माइंडसेट बना हुआ है इन कुफ़ार, मुनाफिकीन और मुशरिकीन कि हम सिफारिश से बच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं अल्लाह की औलाद है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये मुशरकाना जो ज़हनियत है कि अल्लाह की औलाद बनाना ये बहुत भारी चीज़ है। कितनी भारी चीज़ है? तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, अभी आसमान फट जाएगा, इतना बड़ा काम है ये, इतनी अल्लाह ताला पे बड़ा इल्ज़ाम है अल्लाह ताला के हवाले से, इतना ये मुशरकाना
ज़हन और सोच है कि आसमान फट जाएंगे, वतनशक्कुल अर्ज़, और ज़मीन के टुकड़े हो जाएंगे, वतखिर्रुल जिबाल हद्दा, और पहाड़ गिर जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये अल्लाह के बारे में जो ख्याल पैदा करते हैं, अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा, ये अल्लाह के लिए कोई औलाद को पुकारते हैं। जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, वक़ालतल मसीह इब्नुल्लाह। इसी तरीके से यहूदियों ने हज़रत उज़ैर के बारे में कहा, वक़ालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। और अहले मक्का ने कह दिया जी फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरीके से और मुशरिकाना सोच बाद में भी मौजूद रही है। आज के दौर में भी अल्लाह ताला के हवाले से मुख्तलिफ मुशरिकाना सोचें पाई जाती हैं। अल्लाह के यानी हकीकी तौर पर जो अल्लाह की औलाद के हवाले से है, जिसको तौहीद फ़िज़ात कहते हैं, अल्लाह की ज़ात के एतबार से कुछ लोगों का ख्याल होता है, बड़े मुशरिकाना सोच है, अल्लाह की औलाद है। इसी तरीके से तौहीद फ़िस्सिफ़ात, अल्लाह की जो सिफ़ात की तौहीद है, उसमें लोगों का बेशुमार गलत अक़ायद है और मुशरिकाना सोच है। अल्लाह के इख्तियारात के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीगर जो सिफ़ात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पर है, हर वक़्त है, गैब को जानते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कुदरत कामिला के एतबार से हैं। आज हमारी सोचें गलत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं, वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है कि औलाद हो। इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी ना करती हो। जब सारी कायनात उसी की है, आसमानो ज़मीन उसी के हैं, और आसमानो ज़मीन के अंदर जो कुछ है वो सब उसी का है और उसकी बंदगी कर रहे हैं, तो फिर उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करना, औलाद का ख्याल पैदा करना या उसकी सिफ़ात में शिरक करना, ये बहुत भारी है। लक़द जिअतुम शैयन इद्दा, ये भारी चीज़ है, इससे हमने मुहतात रहना है। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये जो मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, हिज़्बुश्शयातीन हैं, इनके जो गिनती के दिन हैं वो अब मुकम्मल होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुमार कर रहे हैं, यानी अल्लाह के इल्म में है सब कुछ। वही तजज़िया अल्लाह ताला पेश फरमा रहे हैं, रहनुमाई दे रहे हैं कि हमें हिज़्बुल्लाह को, सच्ची जमातों को मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। इनके दिन दुनिया में भी गिन चुके हैं अल्लाह ताला। दुनिया में अल्लाह ने को तय किया होगा निज़ाम इनके मुहासबे का, इंशाअल्लाह वो ज़रूर आएगा। और अगर ये बच जाएंगे, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़यामति फ़र्दा, ये सब के सब अल्लाह के सामने अकेले अकेले पेश किए जाएंगे, यानी अल्लाह की सज़ा से ये बच नहीं सकते। इसलिए अल्लाह की सच्ची जमात को अपना काम करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, आला नज़रिया और आला सोच छोड़ना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात हम हालात को देख के मायूस हो जाते हैं। हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं जी झूठ का दौर है, हम सच कैसे बोल सकते हैं। आज हम एजेंटियाँ करते हैं, आला कार के तौर पे किरदार अदा करते हैं, मुनाफ़िक़त करते हैं, तो जो मुखलिस लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। भाई हमने मायूस नहीं होना, हमने सच्चे रास्ते को नहीं छोड़ना, हमने आला शऊर और आला नज़रिया को नहीं छोड़ना, हमने सच्ची जद्दोजहद को नहीं छोड़ना। आप देखें इंशाअल्लाह उसके असरात पैदा होंगे। यही जमात, सच्ची जमात आगे बढ़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सलाहियत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरहूमीन व मरहूमात को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए।
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔